Hello there everyone, what's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share my summer skincare routine with you guys because lately I have been getting so many comments about my skincare routine, that what are the products I choose, how am I treating my acne and stuff. So that is what we are going to share in today's video. So please subscribe my channel, don't forget to press the notification button right beside the subscribe so that every time I upload a new video, you guys are the first one to get notified. Like this video, share with your friends, tell me in the comment section box that was this video helpful to you guys or not. Follow me on Instagram, I would be providing the Insta handle on the screen and in the description as well. So without wasting any further time, let's get rolling. So as I have already told you guys that I am suffering from this scalp infection, जिसकी वजह से होता क्या है कि मेरे फेस पे allergic reaction हो रहा था. I shared this thing in a video of mine a long time back कि मैं अब बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ. I just hardly use 2 to 3 products because जैसे कि मुझे बताया गया था, I just have to clean my face with a cleanser, not a face wash. Just do my scrub 2 times a week or sometimes 3. पता है कि स्क्रब 2-3 बार नहीं करना चाहिए, but as suggested by my dermat, it is needed, it is required for my skin to scrub at least 2 to 3 times a week, and I am actually seeing a lot of visible differences जब से मैंने वो स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया. आई एम गोइंग टू शेयर कि मैं इस मौसम में अपनी स्किन का केयर कैसे कर रही हूँ, what are the products I use and how do I take care of my skin. The first step I do is to cleanse my face. I have already shared that I use Cetaphil cleanser to wash my face. The cleanser is like really gentle on my skin. I have been told not to use any face wash, so I generally do not even put my hands on the face washes because जो मुझे बताया गया है I am following that. So I use Cetaphil cleanser to clean my face. It's just that वो कोई foam create नहीं करता, कोई लादा फॉर्म नहीं करता, तो maybe you'll feel कि आपका face clear नहीं हुआ है, but trust me guys, when आप उसको अपने face पे करते हो, you wash your face with water, you will literally feel कि आपकी skin इतनी ज़्यादा clear लगती है. I've already washed up my face, मैंने cleanser से already अपना face जो है वो wash कर रखा है, and you guys can clearly see जो मेरी earlier videos में मेरे marks थे, मेरे pimple marks थे, like वो अब 50% रिड्यूस हो चुके हैं. लाइक आई कुड सी अ लॉट ऑफ मार्क्स अराउंड है, वो भी इतने डार्क. जैसे अभी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दिख रहे होंगे, एक्चुअली दीज आर एक्टिव एक्ने, दैट इज वाई वो इतने डार्क है. बट ऑन दिस साइड यू कैन लिटरली सी माई फोरहेड इज लाइक कम्प्लीटली क्लीन, माई चिन इज कम्प्लीटली क्लीन, माई नेक एरिया इज क्लीन. लाइक मुझे बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंसेस दिख रहे हैं. द सेकेंड स्टेप आई डू इज टू स्क्रब. ओके, नॉर्मली सबको 2 से 3 बार स्क्रब नहीं करना होता है. यू जस्ट नीड टू स्क्रब योर फेस वंस अ वीक, उतना ही रेकमेंडेड होता है. बट क्योंकि मुझे बताया गया इसलिए आई यूज 2 to 3 times. So the scrub I am using nowadays, this Kama Ayurveda Kumkumadi Brightening Ayurvedic Face Scrub. This is the scrub I am using. This is the Kama Ayurveda Kumkumadi Brightening Ayurvedic Face Scrub. The best thing about this scrub is it is made in India. कोई भी स्किन टाइप का जो पर्सन है इस वाले स्क्रब को यूज कर सकता है. यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है. एंड मी बीइंग अ पर्सन विद सेंसिटिव स्किन, आई यूज इट एज वेल, एंड मुझे अपने फेस पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है अभी तक. ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द स्क्रब कि ये स्क्रब मुझे कैसा लगता है एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट लिस्ट, व्हाट आर द ऑल द स्टफ व्हिच इज मेंशन्ड इन हियर. Okay, so as mentioned, Kumkumadi face scrub is basically formulated with pure Ayurvedic Kumkumadi oil. The thing about Kumkumadi oil is that it's a miraculous beauty fluid which is made up of 12 precious and rare ingredients. It has that ingredient list which will actually help in illuminating your complexion. It will help in smoothen your fine lines, renew skin cell growth, and it will actually help in protecting you from that aging effect on your face. So the authentic Ayurvedic formula is created with the finest Kashmir saffron to brighten your skin and repair pigmentation. So it has this Kashmir saffron in it. सैफरन की अगर मैं बात करूँ, इट विल हेल्प इन ब्राइटन योर स्किन, आपकी पिगमेंटेशन से आपको प्रिवेंट करता है, आपका जो डैमेज स्किन होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है. It also has sweet almonds in it, and अगर मैं sweet almonds की बात करूँ, sweet almonds are like
सो रिच इन विटामिन ई एंड आपकी स्किन को इतने अच्छे से नरिश कर देते हैं। आपका जितना भी डेड स्किन होता है उसको रिपेयर कर देते हैं, बिल्कुल एम्पलीफाई कर देते हैं आपकी स्किन को। जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज होती है वो आपके स्किन से प्रॉपरली जो है वो रिमूव कर देता है। थिंग इज दैट इट इज क्लिनिकली टेस्टेड एंड अगर ये प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड है विच इज लाइक इज रियली सेफ टू यूज। सो अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की थोड़ी सी बात करूं, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स राइट हियर, लेकिन मैं अगर मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूं जो लाइक मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं, दैट इज स्वीट आलमंड्स, दैट इज कैश्मीर सैफरन एंड इट हैज ग्लिसरीन इन इट। ग्लिसरीन इज लाइक रियली गुड फॉर दोज जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है। कैश्मीर सैफरन इज रियली गुड फॉर योर स्किन। स्वीट आलमंड इज रियली गुड फॉर योर स्किन। तो इसकी बहुत ज्यादा बातें हो गई। सो लेट्स सी कि ये फेस पे कैसे काम करता है। आई हैव बीन रियली लविंग यूजिंग दिस फेस स्क्रब ऑन माई फेस फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। लाइक मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसका लग रहा है। सो इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दिस इज हाउ यू गेट योर प्रोडक्ट एंड द बेस्ट थिंग विच आई फाइंड इज दैट यू ऑल्सो गेट लिटिल स्पैचुला अलॉन्ग विद इट। आपको इस टाइप का स्पैचुला मिल जाता है। इफ यू गाइज हैव यूज द एम कैफेन वाला फेस मास्क, यू मस्ट बी सीइंग इस टाइप के स्पैचुला रिसीव होता है विच इज लाइक रियली हैंडी, बहुत ज्यादा मेसी नहीं हो जाता है। पैकेजिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इस स्क्रब की। बहुत ही लग्जूरियस काइंड ऑफ पैकेजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको टॉप जो है वो ब्लैक मिल जाता है, देन आपको नीचे आपकी सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो आपको आउटर पैकेजिंग पे मिल रही थी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। द पैकेजिंग इज लाइक रियली स्टर्डी एंड रियली गुड। लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ चीप काइंड ऑफ पैकेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग आपको यहाँ पर रिसीव हो जाती है। लेट्स सी हाउ दिस स्क्रब वर्क्स ऑन द फेस। ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड अप माई फेस, मैं अपने फेस को थोड़ा सा डैम्प कर लूंगी बिफोर यूजिंग द स्क्रब। मैं इसको अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। गाइज, देर इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, never use scrub on your active acne. Like as you guys can see, मेरी इस साइड पे मुझे कहीं भी एक्टिव एक्ने नहीं है। दीज आर जस्ट एक्ने मार्क्स, फोरहेड पे नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये 2 एक्टिव एक्नेज हैं जिसको मैं अवॉइड करूंगी कि मैं वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया पे स्क्रब ना करूं। द रीजन बीइंग कि आपको अपने एक्टिव एक्नेज पे स्क्रब नहीं करना चाहिए इज दैट बेसिकली व्हेन यू जिस हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि आपको अपने एक्नेज को पॉप नहीं करना चाहिए, सेम गोज विद दिस थिंग। जब आप अपने फेस को स्क्रब करोगे, आपका जो पिंपल है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दैट इट माइट पॉप, एंड जब वो पॉप हो जाता है तो जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर होने के साथ साथ अंदर की साइड पर भी होता है। एंड जब वो डिस्चार्ज होता है तो आपकी स्किन के अंदर वो जो गंदा फ्लूइड होता है वो फैल जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन मोर एक्नेज एंड मोर पिंपल्स। इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। सो मैं इस साइड पर तो आराम से कर लूंगी बिकॉज इस साइड पे मुझे कहीं भी कोई भी एक्ने प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं सिर्फ ये वाला जो मेरा दूसरा वाला चीक है, मैं इस पे ये वाला एरिया जो है सिर्फ अवॉइड करूंगी कि मैं उस पे स्क्रब ना करूं। ओके, आई हैव बीन रियली लाइकिंग द स्क्रब। इस स्क्रब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं विच इज लाइक रियली गुड। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो है ना वो हार्ड नहीं है, लाइक इतने भी आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा जेंटल या बहुत ज्यादा माइल्ड है। फील होगा आपको कि आप कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो। आई फील दैट थोड़े से अगर पार्टिकल्स और ज्यादा सॉफ्ट होते तो दैट माइट बी गुड, बट जितने इसके पार्टिकल्स हैं ये इतने नहीं है कि आपकी स्किन को खराब करेंगे या कुछ, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट एंड बीइंग अ पर्सन विद रियली हाईली सेंसिटिव स्किन। अगर इतने पार्टिकल्स मेरे फेस को खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ मेरे फेस पे गंदा रिजल्ट नहीं लेके आ रहे हैं, तो आई फील लाइक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्क्रब है ये वाला। इट हैज दिस रियली नाइस एंड अमेजिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच इज रियली सूदिंग। देर आर पीपल जिनको फ्रेग्रेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती है, सो उन लोगों को मे भी ये पसंद ना आए उतना ज्यादा, बट फॉर दोज जिनको फ्रेग्रेंस से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन एक्चुअली यूज इट। Guys, you can like clearly see my face is looking so glowy right now. Like you can just take a look at my skin. It's looking so illuminating and so good. This scrub actually helps in making your skin so smooth. Like जब आप इस scrub को use करोगे and you'll just feel your face, आपको इतना ज़्यादा soft feel होगा. Like on those areas जहाँ पर मुझे कोई भी acne नहीं है, I feel so good. इतना ज़्यादा amazing लगता है. This scrub is actually helping to reduce
रिड्यूस माई एक्ने स्कार्स, बिकॉज मुझे बोला गया था कि इफ आई विल पुट मोर फोकस ऑन स्क्रबिंग तो उसी से ही मेरे एक्ने मार्क्स जो है रिमूव होंगे. सो देयर इज दिस वन थिंग विच इज लाइक क्लियरली मेंशन्ड इन इट दैट ये 34% आपकी स्किन को जो है स्मूदन करता है, ये वाला फेस स्क्रब. एंड आई टोटली बिलीव दैट दिस स्क्रब एक्चुअली हेल्प्स इन यू नो स्मूदनिंग अप योर फेस. बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है एंड इट सेज कि 24% आपके पोर साइज को रिड्यूस करता है. मुझे अभी ये फेस स्क्रब यूज करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो आई हैव नॉट सीन एनी रिजल्ट इन यू नो पोर्स में. मैंने कुछ अभी तक रिजल्ट नहीं देखा कि मेरे पोर्स रिड्यूस हो रहे हैं. पोर रिडक्शन मुझे अभी तक नहीं दिखा है. मे बी थोड़ा टाइम में और यूज करूंगी तो मुझे पोर रिडक्शन में रिजल्ट दिखे, बट इट डेफिनेटली स्मूदन्स योर फेस. फाइन लाइंस वगैरह की आपकी जितनी प्रॉब्लम होती है उसको एक्चुअली यू नो क्योर करने में हेल्प करता है. तो सनस्क्रीन मैं यहाँ पे यूज करती हूँ वो है ये बायोटिक की बायो सैंडलवुड. आई ऑल्सो यूज द न्यूट्रोजिना सनस्क्रीन. आई क्वाइट लाइक इट. सो मैं सनस्क्रीन से क्या करती हूँ, आई जस्ट टेक द टाइनीएस्ट अमाउंट, लाइक दैट्स इट. सिर्फ इतनी अमाउंट आपको सनस्क्रीन की इतनी ही अमाउंट लेनी होती है. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सनस्क्रीन किस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए. सो आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि आपको सनस्क्रीन किस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सही तरीके से अपना सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं. सो इतनी सी अमाउंट लूंगी. मुझे बेसिकली ड्राइनेस होती है अपने माउथ एरियाज के अराउंड, और जहां पे मुझे हल्का सा यू नो एक एक्ने का बम्प होता है वहां पे. सो आई जस्ट टेक इतनी सी एंड मैं अप्लाई कर लूंगी यहाँ पे. दैट मैं उसको ब्लेंड इन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसको अप्लाई करके छोड़ दूंगी जहां पे मुझे हल्की सी ड्राइनेस होती है. आई जस्ट क्रिएट अ लेयर अराउंड देयर. यहाँ पे जहां पे ड्राइनेस होती है सिर्फ वहां पे. अ लिटिल बिट ऑन माई नोज, लाइक यू कैन सी मैं हल्की सी क्वांटिटी लेके अपने पूरे यू नो उन एरियाज पर भी ब्लेंड कर रही हूँ. एंड बहुत ज्यादा भी नहीं लग रही है, सन प्रोटेक्शन भी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगा है. एंड दैट इज इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तीनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो अगर आपको तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होगा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में से बाय कर सकते हो. सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.